पंजाब जीके ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, the only ਤਹਿਸੀਲ of Punjab which does not have any urban population, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, which one amongst the following rivers of Punjab constitute the largest catchment area? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਔਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। What is the old name of ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਰੋਹੇਲਾ ਵਿਲੇਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? तो उस शहर का नाम की है? उस शहर का नाम है श्री हरगोबिंदपुर। गुरु अर्जन देव जी ने रोहेला पिंड है जाके रावी के कंढे के उत्ते पैंदा है, और इस जगह के उत्ते एक की कहते कि मोन सीगा, एक टिला जा सीगा, और वो उन्होंने जगह बहुत पसंद आई, रावी के कंढे ते पैंदी है। तो उत्थे हरगोबिंद जिहड़ा सीगा शहर वसाया सीगा। फिर बाद विच इहदा नाम बदल के श्री हरगोबिंदपुर कर दिता गया। तुसीं देखदे हो कि यह हरगोबिंदपुर यह अमृतसर तो जदों आपां हुशियारपुर रोड जांदे हां तां रस्ते दे विच यह जगह पैंदी है, और रावी दे कंढे दे उत्ते यह दरिया यह शहर पैंदा है। हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वॉज कंपाइल्ड बाय, गुरु ग्रंथ साहब का इनू कंपाइल किया तो किने किया? इसका जवाब तुसीं सारे जानते ही हो कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी पंजवें गुरु सिखां दे, उन्होंने अंमृतसर बैठ के जिहड़ा सीगा इसका कंपाइलेशन करवाई सीगी। और उस वेले इसदा नाम की सीगा? उस वेले इनू या तो पोथी कहंदे हुंदे सीगे या इनू आदबीड़ के नाम नाल भी जानिया जांदा है। किस नाम नाल जानिया जांदा है? आदबीड़ के नाम नाल भी जानिया जांदा है इनू। हुण इत्थे एक क्वेश्चन होर आ जाता है, क्योंकि इनू आदबीड़ कहते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब दे विच असीं देखते हैं कि पहले 5 गुरुआं की बाणी और उस तो बाद 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी भी है। जे गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जन देव जी ने
ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਦਿ ਬੀੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ? ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਵਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ 'ਚ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਦੇਹ ਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸ ਕੰਪਾਈਲਡ ਬਾਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। What were the major causes for the second Anglo-Sikh War? ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਸ ਵਰ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਾय ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ when she was removed from Lahore to Sheikhupura on the charge of conspiracy। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ
ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਜੈਂਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ। The immediate cause for the British company's invasion of the Punjab was the revolt of Mool Raj, the governor of Multan. ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਦਰੋਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ all of these, ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, all of these, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। Which one of the following is the longest highway in India? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? NH17, NH21, NH44। ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ that is NH44। NH44 is the longest national highway in India। ਤਕਰੀਬਨ 4800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ NH44 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। 4812 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 27 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਰਬੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗਾ, that is north to south ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। that means ਉਹ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 44 ਹੈ ਤਾਂ 44 ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, that is ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ 27 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਲੌਂਗੈਸਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਹੈ 27 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
Maharaja Ranjit Singh at the age of 10 took part in a campaign along with his father. ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਸਨੌਰ, ਸੋਧਰਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਘੁੜਾਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਧਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੋਧਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ, ਈਵਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਵਲ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਵਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ widely regarded the father of Punjabi novels. Who among the following became the first woman to win Sahitya Academy Award? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ first woman to win Sahitya Academy Award, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਇਟ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ defeated ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ, the commander of Afghan king Shah Zaman, grandson of Ahmad Shah Abdali in 1797 in which battle? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ
अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1762 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1769 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1769 ਜਾਂ 71 ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੰਚੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਉਟੂਕ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕੀ ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾय ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। Who got the Gurdwara Fatehgarh Sahib built at the place where Guru Gobind Singh Ji infant sons
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਪ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ 1761 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਊਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। The state bird of Punjab is, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੜੀ, ਮੋਰ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟਰਨ ਗੋਸਹਾਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਸਹਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ ਨੂੰ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਈਸਟਰਨ ਗੋਸਹਾਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਗੋਸਹਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਗੋਸਹਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਬਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਗੋਸਹਾਕ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਮ ਐਸੀਪੀਟਰ ਜੈਂਟਲਿਸ ਹੈ, that is the state bird of Punjab, not the eastern gossack. So ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਦਰਨ ਗੋਸਹਾਕ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਈਸਟਰਨ ਗੋਸਹਾਕ ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਗੋਸਹਾਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਹਾਭਾਰਤ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਚਨਾਦ, ਪੰਚਸੁਦਾ, ਪੰਚਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਪੰਚ ਬਾੜਾ। ਸੋ ਪੰਚਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਚਨਾਦ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ੋਰੋਆਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਹਿੰਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਚਨਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ, ਪੈਂਟਾ ਮੀਨਸ ਪੰਜ, ਪੋਟਾਮੀਆ ਮੀਨਸ ਦਰਿਆ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਔਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪੱਥ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ
ट्रैवलर जिहड़ा कि कहा जाता कि सब तो ज़्यादा ट्रैवल किया पंजाब के फिरोज शाह तुगलक के टाइम के उत्ते आया सीगा। उसने पहली बार वर्ड पंजाब यूज़ किया है और ऑफिशियल लिटरेचर दे विच पंजाब प्रोविंस का नाम ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया। उस तो पहला पंजाब का अखर किते यूज़ नहीं होया। ईवन रणजीत सिंह के टाइम के उत्ते इनू लाहौर दरबार कहा जाता सीगा या खालसा दरबार ऑफिस उन्हां दी कोर्ट नूं कहा जाता सीगा और लाहौर दरबार जिहड़ा सीगा इन्हां दा राजसी नाम सीगा। सो इस तरीके देखते हैं कि पंजाब प्रोविंस का नाम पंजाब जिहड़ा सीगा वो ब्रिटिशर्स के टाइम के उत्ते उस तो बाद पे है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स पंजाब हैज बीन पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल, पंजाब कितनी बार प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है। ते 8 बार जिहड़ा सीगा पंजाब प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा होया है। महाराजा रणजीत सिंह acquired कोहिनूर डायमंड फ्रॉम वफा बेगम, शाह शुजा, जमन शाह, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली तो पहले ही मर गया सीगा। जमन शाह तुहानूं पता ही है कि वीर तां अन्या कर दिता सी उहदे भरा ने और कैद कर किया होया सीगा ते भज के जिहड़ा सीगा फिर ये महाराजा रणजीत सिंह दे कोल भज के आ गया सीगा। ये भज के आया सीगा, वफा बेगम नूं नाल लैके आया सीगा। वफा बेगम वाज वाइफ ऑफ शाह शुजा। शाह शुजा जिहड़ा सीगा ये भी तैमूर शाह का पुत्र सीगा या कहिए कि जमन शाह का भरा सीगा। तकरीबन कहा जाता है कि वो 24 पुत्र सीगे तैमूर शाह के। उन्हां दे विचों फिर आपस लड़ाइयां हुई, किसी वेले जमन शाह, किसी वेले शाह शुजा, किसी वेले महमूद वो भी एक भरा सीगा, उहदा भी कब्जा रहा काबुल के उत्ते। तां जदों महमूद का कब्जा होया तो उस वेले जमन शाह ते शाह शुजा की वाइफ ये भज के जिहड़ा सीगा ये लाहौर आ गए सीगे, जिथे आके इन्होंने पनाह लीती और शाह शुजा नूं महमूद ने कैद करके कश्मीर भेज दिता सीगा। और तुहानूं पता ही होना कि फिर 1813 की कश्मीर की लड़ाई दे विच उत्थों फिर रणजीत सिंह की जिहड़ी फौज सीगी वो शाह शुजा नूं छुड़ा के लियाई सीगी। तां उस तो बाद जिहड़ा सीगा रणजीत सिंह ने उन्हां तो कोहिनूर लिता सीगा। सो जवाब हैगा यह शाह शुजा तो कोहिनूर डायमंड हासिल किया सी। मैच द फॉलोइंग। सो ब्यास, रावी, चनाब, जेलम इन्हां दे संस्कृत नाम की है। एक क्वेश्चन एग्जाम च हमेशा आ जाता है तो इन्हू चंगी तरह रट्टा मार लो। और ये देखो जी वितास्ता जेलम का नाम है, इट इज जेलम। असीकिनी यह चनाब का नाम है। परूसनी यह रावी का नाम है। विपासा ब्यास का नाम है और स्तूदरी ये सतलुज का नाम है। ठीक है जी। सो ये संस्कृत नेम्स ने, ये संस्कृत दे विच नाम ने। एवें ही तुहानूं किते ना किते ग्रीक नाम वो भी याद होने चाहिए ने, क्योंकि कदे ना कदे बैटल ऑफ हेडेस्पस जिहड़ी सीगी उहदा भी जिक्र हुंदा है। जिहड़ी कि बैटल ऑफ हेडेस्पस वो जेलम जिहड़ा सीगा उहनूं कहा जाता है कि जदों सिकंदर ने भारत के उत्ते हमला किया सीगा। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख अंपायर स्टार्टेड इन। जिहड़ी पहली एंग्लो सिख वॉर हैगी कदों शुरू हुई और जिहड़ी कि ब्रिटिश दे नाल हुई सीगी। सो इसदा जवाब की बनता है? इसदा जवाब बनता 1845 बनता है, 1845-46। ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਇਹ 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ। फिर बैटल ऑफ आलीवाल ये 28 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ। और फिर फैसला कुन बैटल ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। दैट इज द बैटल ऑफ सबरौं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢਾਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਫ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ
ਤੋਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐम्पायर, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ऑल्दो उन्होंने कंप्लीटली टेक ओवर नहीं किया, सिर्फ अपना बोर्ड बिठाया सीगा टू असिस्ट द एम्पायर, पर उन्होंने तकरीबन जिहड़ा सीगा उन्होंने किसी न किसी तरीके नाल पहला तो राणी जिंदा नूं हटाया, और राणी जिंदा नूं हटा के एक उन्होंने एक बोर्ड बनाया टू असिस्ट महाराजा दलीप सिंह, और फिर उहदे उत्ते खुद कब्जा कर लिया। इस तरीके नाल यह कहा जा सकता है कि रणजीत सिंह दे एम्पायर का खात्मा होया और ब्रिटिश राज जो सी उस तो बाद शुरू होया। सो ये 1845-46 फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई, फिर 48-49 असीं देखते हैं कि उस तो बाद सैकेंड एंग्लो सिख वार हुई, जिहदे बारे आपां पहलां गल कर चुके हैं कि उहदे मुख कारण की बने सीगे, ओह इस तो पहले क्वेश्चन आपां डिस्कस कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वी गोना डिस्कस द पार्ट ऑफ द जीके सेक्शन। ठीक है, जीके क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आसपास के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या इसमें रहा है आपके पास। ठीक है सिस्टम, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू अबाउट द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है क्लास। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन 50%, ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू 100%, शेयर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 75%, देयर शुड बी नो शेयर ऑफ द प्राइवेट स्टेट। ठीक है, अब क्लास जरा दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, आपको आपका जो बी और डी स्टेटमेंट है दोनों सेम सेम है। अगर 100% होगी तो इसका मतलब है कोई प्राइवेट होगा भी नहीं, है ना। बट जब हम इस परसेंटेज को टर्म को देखते हैं तो ये इससे डिफाइन नहीं होता। 50% से अबव हमारे पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का शेयर है तो हो जाएगा, अगर बाकी शेयर प्राइवेट का है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50% शेयर शुड बी विद द गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन 50% शेयर। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कंसर्न्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका एक FRBM एक्ट है। ठीक है, ये एक्ट बेसिकली डील किसके साथ करता है। ठीक है, कॉमनली जो एक्ट है इसको कई बार हम कैपिटल में FRBM एक्ट के तौर पे भी लिख देते हैं। ठीक है, FRBM एक्ट, ये बेसिकली डील किसके साथ करता है। ठीक है, तो डील्स विद द फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, किस तरीके से जो हमारे वित्तीय घाटे हो रहे हैं उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एक बढ़िया बजट बनाया जा सकता है जो हमें इन वित्तीय घाटों से क्या निकाल सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनविजिबल, अब देखो क्लास ध्यान से, हमें वर्ड से पता लग रहा है, प्रोबिएटेड गुड्स एंड अनरिकॉर्डेड गुड्स, स्मगल्ड गुड्स, है ना, ये क्वेश्चन हमें देखने लगता है तो हमें लगता है कि ये भी अनविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है हमारे पास। हम कभी किसी ने कहा है कि मैंने 5 किलो अफीम बेची है, उसका हिसाब किताब लिख लो, है ना, कोई नहीं बताता इन चीजों के बारे में। सर्विसेज, ठीक है, जो आपकी जीडीपी के सिस्टम में काउंट हो रही है, जिसको हम लेखा जोखा जिसका हम रख रहे हैं, वो आपकी ग्रेस आपकी जो है वो सर्विस सेक्टर है। गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स का तो हिसाब किताब आता है, सर्विसेज आपके किस कैटेगरी में चली जाएगी, इनविजिबल कैटेगरी में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट का पार्ट होते हैं क्लास। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शंस आपके जीडीपी में नहीं पता लगती हैं हमें। ठीक है, जीडीपी का एक फ्लॉ है ये, कि लिमिटेशन है जीडीपी की, कि हम ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट का हिसाब किताब इसमें नहीं रख पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। रेवेन्यू की जो रिसिप्ट्स हैं, हमारे पास रेवेन्यू बजटिंग के लिए पैसा कहां से आता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो क्लास, डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, रेवेन्यू अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आपके वो खर्चे हैं जो सालाना आते हैं और सालाना चले भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स का हिस्सा ही। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डोनेट्स प्राइमरी डेफिसिट। सबसे प्राथमिक घाटा जो हमारे पास वित्तीय घाटा होता है वो कौन सा है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, वैसे तो प्लस का कोई हिसाब किताब नहीं है क्लास, अगर ध्यान से देखो, फिजिकल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू पेमेंट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, प्लस वाला कोई सिस्टम नहीं होता। ये वित्तीय घाटे किसी को किसी से माइनस करके हिसाब किताब से निकाले जाते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट विल बी द राइट आंसर। चलिए, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स इज नोन एज। जो हमारे इंपोर्ट्स बाहर से आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर कौन से टैक्सेस लगाते हैं,
इजी क्वेश्चन है क्लास, अगर ध्यान से देखो तो कस्टम ड्यूटीज हम लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई चीज बाहर से आई। कस्टम आते हैं ना, कस्टम चार्जेस लगते हैं हमारे कुछ चीज मंगाने के लिए, जैसे हमारे पंजाबियों का आईफोन का शौक होता है, बाहर से मंगाते हैं तो समटाइम वी हैव टू पे द कस्टम चार्जेस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ना क्लास, वो स्टेट का है, इसको टैक्स को कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। तो नॉट है क्लास, मैंने भाई बहुत बार बोला है कि जब ऐसा नॉट ट्रू, नॉट इसको मार्क कर लिया करो वरना पेपर में गड़बड़ करवाता है, ठीक है। तो नॉट वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है, इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, India's first open rock museum displaying the different type of rocks gathered from different states and has been opened at which place? भारत के तकरीबन हर हिस्से से हमने रॉक्स के सैंपल लिए हैं, क्योंकि भारत बहुत विविध देश है, बहुत सारे डिफरेंट स्टोन्स कल्चर्स यहां पर पाए जाते हैं, तो उन स्टोन्स को हमने एक म्यूजियम में रखा है ताकि पूरे भारत को हम एक जगह से देख सकें। तो आपका राइट आंसर है इसका हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, Who led the British forces against defeating the झांसी लक्ष्मी बाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्लास हिस्ट्री का, कि झांसी की रानी को 1857 की क्रांति में हराया किसने था? तो राइट आंसर विल बिकम ह्यू ग्रॉस, ठीक है। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कोल्ड महात्मा बाई, महात्मा का टाइटल मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दिया था, जिसलिए आज हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से ज्यादा बुलाते हैं। आधे लोगों को तो शायद उनके आगे के दो नाम भी नहीं पता होंगे कि इनका नाम मोहनदास करमचंद है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, जिन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी। और फादर ऑफ नेशन इनको किसने कहा था? आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? कौन सा टाइटल नॉन कॉर्पोरेशन के टाइम पर गांधी जी ने सरेंडर कर दिया था? वो टाइटल था आपका केसरिए हिंद। 1915 में जब गांधी जी भारत वापिस आते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग उनको एक मेडल से नवाजते हैं, जिसको टाइटल से नवाजते हैं, जिसे केसरी हिंद कहा जाता है। एम्बुलेंस सर्विस जिन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू की थी उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर विल बिकम केसरी हिंद, ठीक है। और इसी समय पे कई बार ये जो नाइटहुड का टाइटल, इसका भी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नाइटहुड का कोई आपसे पूछता है तो रविंद्रनाथ टैगोर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, When was the महात्मा गांधी arrested during the Quit India movement of 1942? 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें किस तारीख को गांधी जी को जो था अरेस्ट किया गया था? अब देखो क्लास, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पता होता तो दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट होते, क्योंकि अगस्त में क्रांति हुई थी तो 7 और 9 की कंफ्यूजन है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को हुई है, तो इनको अगले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि कॉल अप करने के लिए जैसे टाइम लगता है थोड़ा सा लोगों को प्रोवोक करने के, तो 9th of August इज द राइट आंसर। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ कुषाण वंश, जो आपके राजा थे, राजा कनिष्क, उस समय पर आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोमिनेंट दिखता है। उस समय दो बड़े प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ आर्ट हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा बेसिकली इंडियन स्क्रिप्चर्स को डिफाइन करता है, जिसमें आपको भगवान की, देवी देवताओं की जो मुद्रा है वो सिटिंग फॉर्म में दिखती है, जैसे लॉर्ड बुद्धा, शिवा आपको सिटिंग पोस्टर, मेडिटेशन पोस्टर में दिखते हैं, जबकि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपको गॉड्स और गॉडेसेस स्टैंडिंग पोस्टर्स में दिखेंगे। बुद्धा की जो स्टैंडिंग पोस्टर्स हैं वो गंधार स्कूल में है। बट आपको याद रखना है कुषाण वंश के अंदर आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश करता है। विच वन ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्ता काल के अंदर कौन से आपके चाइनीज ट्रैवलर भारत आए थे? दैट इज फाहीन। ये आपको क्वेश्चन बड़ा कॉमन है क्लास, पूछा जाता है। फाहीन किसके समय में आए? मार्को पोलो किसके समय में आए? निकोलो कॉन्टी किसके समय में आए? ह्यूज फैंग किसके समय में आए? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन किसके समय में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए जी, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स? कौन से राजा के बारे में हाथी गुम्पा जो इंस्क्रिप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है क्लास, पूछा जाता है। कारावेला राजास के बारे में इसके ऊपर आपकी इंस्क्रिप्शन के डिटेल्स दिए गए हैं। ऐसे समुद्रगुप्त और आपके राजा अशोक का जो इंस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रयाग प्रयाशति पिलर है, ठीक है, जहां से आपको मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें मेहरौली के आयरन पिलर से पता लगता है, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है, वहां से हमें क्वेश्चंस पता लगते हैं, ठीक है। चलिए, द इलस्ट्रेशन नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वहामीर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द एज? क्वेश्चन यह है कि आर्यभट्ट और वहामीर आपके पास कौन से वंश के राजाओं से बिलोंग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल से, ठीक है। चलिए,
गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, गुप्त काल का जो डिक्लाइन है ये किस वंश के समय पर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुन इन्वेजन। ठीक है, हुनवेजन्स ने जब भारत पे अटैक किया, हुनवंशियों ने, मंगोल टर्क ट्राइब है एक, उन्होंने सकंद आपके राजा कुमार गुप्त को हराया था और उनकी हत्या भी कर दी थी, बाद में उनके बेटे सकंद गुप्त ने इनको युद्ध में हराया था। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस सॉट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो कहता है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जस्टिस का, अगर हम बात करते हैं जो आपको दिया गया है प्रियम्बल की जो लैंग्वेज उसके अंदर, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, सबसे पहले आपको सामाजिक तौर पर न्याय देना जरूरी है, दूसरा आपको आर्थिक तौर पर, और तीसरा राजनीतिक तौर पर। आपको तीनों के तीनों न्याय मिलने जरूरी है इस देश के अंदर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी तारीख मेंशन है? डेट जो मेंशन है वो है 26 नवंबर 1949 की, ये संविधान बनकर तैयार हो गया और हम भारत के लोग इस तारीख को अपने आप को संविधानिक तौर पर रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए, द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन बिकॉज, वो कहता है प्रियम्बल संविधान की इंटरप्रिटेशन के लिए, मतलब उसकी व्याख्या के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इट कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। अगर आपको प्रियम्बल का आइडिया ना क्लास, तो आपको पता लग जाएगा देश कैसा है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड एक्सप्रेशन, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सारे शब्द आपको बेसिकली एक संविधान का आइडिया ही दे रहे हैं कि हमने आगे का संविधान कैसा बनाया हो। ठीक है, चलिए, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोयला एज अ इमर्ज्ड स्पीशीज? ठीक है, कोयला आपका एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो आपको कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर की है? दैट इज बाय द ऑस्ट्रेलिया। करंट अफेयर से क्वेश्चन है क्लास। नेशनल विमेन्स डे जो 13 फरवरी को बनाया जाता है भारत में, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है क्लास? सरोजिनी नायडू, भारत के पहली महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की, और उसी समय के आसपास आपकी सुचित्रा कृपलानी क्या बनती है? गवर्नर, पहली मुख्यमंत्री बनती है, महिला मुख्यमंत्री बनती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, इसरो प्लेस्ड द इट्स अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट EOS-04 इन द सन्स रेगुलर पोलर ऑर्बिट 14th of Feb, व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इट इज? ठीक है, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसरो ने कुछ समय पहले EOS-04 एक सन सिंक्रोनॉम पोलर ऑर्बिट भेजी थी 14 फरवरी को, कौन से टाइप की सैटेलाइट थी? तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी। ठीक है, ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये। चलिए, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू सर्टिफिकेशन फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस? कौन सी कंट्री ने सबसे पहले लाइसेंस दिया है कि उस कंट्री के अंदर जो UAV है वो ऑपरेट कर सकते हैं सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर? तो आंसर क्या है आपका? इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? कौन सी कंट्री है भारत की जो कंप्लीटली प्लास्टिक न्यूट्रल हो चुकी है, किसी तरीके के प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं कर रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। डाबर इंडिया। ठीक है, काफी पुराना ब्रांड है। ठीक है, डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट से आपकी फ्री हो चुकी है। चलिए जी, कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी इज लॉन्च्ड ऑन Feb 17 इन विच सिटी? दैट इज इन योर मुंबई। भारत की पहली टैक्सी जो वाटर टैक्सी है वो कहां शुरू की गई है? मुंबई में शुरू की गई। चलिए, एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इज इनोग्रेटेड इन फरवरी 19, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, इंदौर के अंदर है। ठीक है, भारत का पहला इनफैक्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये बायो CNG प्लांट है। ठीक है, दैट इज इन इंदौर। चलिए, नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन डैश टू एंश्योर द रेपेट्रिएशन ऑफ एवरी स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम द यूक्रेन। मतलब हम तकरीबन सारे भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाए थे। अभी यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हुआ है उसमें कौन से उस मिशन को, उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया? तो ऑपरेशन गंगा इज द नेम गिवन टू इट। चलिए, विद द व्यू टू इंक्रीज कंप्लायंस एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ऑफ indirect taxes and custom has lowered the threshold of mandatory issuance of invoice under the GST of ₹20 crore from the earlier prescribed limit of 50 crore। पहले 50 करोड़ की आपको कंपल्शन थी, अभी कितने पे इसको रिड्यूस कर दिया गया है? 20 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया गया है। Renewable energy which states achieved the number 1 position in overall installed renewable energy capacity in the country as on January 31, 2022। मतलब भारत में रेन्यूएबल एनर्जीज को लेकर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जनवरी 31, 2022 तक किस स्टेट का है? रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलार पे बिजली बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे
आपके विंड एनर्जी पे, तो आंसर है आपका तमिलनाडु इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਆਨਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ 1। मतलब जो द है उसका कोड की आऊगा 1, द का कोड की आ गया 1 आ गया, है ना। उस तो बाद जे आपां ये दोनों नू कंबाइन करिए तो अपने कोल 4 का कोड आ जाऊगा। इस की आऊगा रैन, द कोड की आ जाऊगा, द कोड की आ जाऊगा 4 ते 3 किस दा बचिया, डॉग दा। डॉग दा की बचिया 3 बचिया, डॉग, डॉग दा की बचिया 3 बचिया। हाँ जी, नेक्स्ट इत्थे अपने कोल कैट दा आ जाऊगा, की कॉमन है 6, कैट दा की आ गया 6। आपां इत्थे भी कैट ले लिए, कैट दा की आ गया 6 आ गया। ब्राउन और ब्राइटन की आएगा ईदर 8 और 2, ईदर 8 और 2। अवेदा 5, ठीक है। उस तो बाद वॉज और ब्राउन दा कोड की आऊगा ईदर 7 और 2। ब्राउन दा, हाँ ब्राउन दा, ते इत्थों अपने कोल ए आ गया कि जो ब्राउन सी ओदा कोड की आ जाऊगा 2, ब्राउन दा कोड की आ जाऊगा 2, ठीक है। और ब्राइटन तक की बचूगा 8, ठीक। इत्थे 2 निकल गया, वॉज दा की बचूगा 7, ठीक है। वॉज भी गया, ब्राउन भी गया। इस तो बाद अवे दा 5, हुण तक क्वेश्चन हो ही गया है ना। हाँ जी, हुण तक क्वेश्चन अपना हो ही गया। द दा कोड की है 1, वॉज दा की है 7, ब्राइटन दा की है 8, डॉग इज 3, 1 3 7 8, 1 3 7 8, ठीक है जी। नेक्स्ट ब्राइटन से पूछा तो की कोड सी 8, द आंसर इज 8। हाँ जी, अवे दा की सी 5। हाँ जी, एनोलॉजी जे यह इस दे नाल रिलेटेड है कि यह एंटोनियम्स, द आंसर की आऊगा डी, ठीक जी। नेक्स्ट रिलेटेड टू सर्कुलर अरेंजमेंट 6 लोग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू द राधिका, जे मैं सोनिया इत्थे बिठाई है तो इत्थे की आ गई राधिका, ठीक है। मैं एक बंदा फिक्स कर लिया। पूनम सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति, पूनम जो है वो राइट ते है राधिका दे, राइट लेफ्ट। पूनम इत्थे आ गई ते दीप्ति इत्थे आ गई क्योंकि उसके लेफ्ट ते है, ठीक है जी। मोनिका लेफ्ट ते बैठी है राधिका दे, एंड कामिनी राइट ते बैठी है सोनिया दे। गल खत्म होगी, अपना क्वेश्चन बन गया। इस तो बाद नाउ दीप्ति एंड कामिनी, दीप्ति एंड कामिनी, मोनिका एंड राधिका, ठीक है जी। कामिनी इत्थे, दीपिका इत्थे, मोनिका ते राधिका, मोनिका ते राधिका इन्होंने आपस सीट नू चेंज कर लिया। नाउ हुन कौन ऑपोजिट आ गया, सोनिया दे की कहोगे, मोनिका, ठीक है जी। हुन कामिनी दे लेफ्ट विच कौन है,
कामिनी ए सी लेफ्ट विच कौन हुई पूनम। हाँ जी हुण इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन तुसी कर लोगे। अगे देखो क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है रैंकिंग। इफ ए 10th फ्रॉम लेफ्ट बी 9th फ्रॉम राइट। हुण जदों ये दोनों ने सीट नू इंटरचेंज कर लिया नाउ ए बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट टोटल कितना आऊगा दोनों नू ऐड -1 की करोगे 15 प्लस 9 -1 अपना आंसर आ चुका। हाँ जी नेक्स्ट इज किस ते बेस्ड है कैलकुलेशन ते की क्या गया इतने थोड़ी स्पेस होनी चाहिए सी है ना। कैपिटल ए दा मतलब की है प्लस एम दा मतलब की है माइनस पी दा मतलब की है मल्टीप्लाई पी दा मतलब की है मल्टीप्लाई एम दा मतलब की है माइनस पी दा मतलब की है डिवाइड डिवाइड और क्यू दा मतलब की है पी दा मतलब की है मल्टीप्लाई और क्यू दा मतलब की है डिवाइड 2 3 4 5 है ना। पहला मल्टीप्लाई करांगे 20 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 इंटू 8 बाय 4 कैलकुलेशन करके थे 2 आ जाऊगा 12 मतलब 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 20 माइनस 14 इंटू 7 नन ऑफ दीज इज योर आंसर। देखो अगे साइलोजिज्म सम चॉकलेट्स आर स्टिक्स सम स्पून्स आर स्टिक ऑल स्पून्स आर एप्पल ऑल एप्पल गलत स्टिक और एप्पल सम स्टिक्स आर एप्पल ए वाला पार्ट सम स्पून आर चॉकलेट दूर दूर क्रॉस दा ता साइन ही नहीं आया है ना। हुण चॉकलेट एप्पल किते होर ता नहीं है तो आंसर की आऊगा ओनली सेकेंड फॉलोस है ना। अगे देखो अविनाश इज द सन ऑफ पुष्पा शालू इज द वाइफ ऑफ अविनाश अर्व इन्हां दा बेटा है पुष्पा इज मदर ऑफ कैलाश अच्छा कैलाश इज द हस्बैंड ऑफ अनामिका कैलाश इज द हस्बैंड ऑफ अनामिका ठीक है जी हस्बैंड ऑफ अंकिता सॉरी अंकिता डन अंकिता की लगती है अरव दी की लगती अंकिता अरव दी की कहोगे आंट केड़ी आंट पापा वाली साइड तो की कहोगे नहीं मम्मा वाली साइड तो पापा वाली साइड तो सॉरी यह इन्हां दा बेटा यह दोनों भरा हो गया आपस ते यह भरा दी वाइफ होगी तो की कहोगे पैटर्नल पापा वाली साइड तो आंट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट या पजल कह लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ है द स्टूडेंट है ठीक है इन्हां दा फेस किस साइड है वेस्ट वाल है ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पेस भी चाहिए होगी थोड़ी जी है ना। कैन आई डू समथिंग जस्ट वेट अ सेकेंड
हाँ जी, मैं क्वेश्चन कट करता सो दैट मैनू थोड़ी स्पेस मिल जा सके क्वेश्चन बनाने ਲਈ। ओके हाँ जी 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है जी। सब द फेस वेस्ट वाली साइड, सब द फेस वेस्ट वाली साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ठीक जी। उस तो बाद B एंड F आर नॉट सिटिंग, ना तो B ऊपर बैठ रहे हैं ना F टॉप पे, ना B ना F, ठीक है जी। G is sitting to the left of D and H is sitting to the right of J। हाँ जी G किथे है? राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, G लेफ्ट ते, ठीक है। G किथे है? लेफ्ट दे D दे, ठीक है जी। H is sitting to the right of J, J दे राइट ते H है। There are 4 persons between E and A। A 1 2 3 4 E। I is to the north of B, F is to the south of D, F is to the south of D, J is in between A and D, J D है ना। ये भी हो सकता है 1 2 3 4 A J D J D A J D 1 2 3 4, ठीक है जी। आगे देखो देयर आर, कहां पे थे? H is sitting to the right of J, there are 4 person, I is to the north of, ठीक है जी। J is in between A and D, G is in between E and F। देखो G F ये भी हो सकता है, G F ऊपर हो जाए 1 2 3 4 A J D, इसके मैंने 2 केस बना दिए। G F यहां पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है A J D 1 2 G F, ठीक। आगे देख लो ठीक है जी। अब यहां पे देखो G और F यहां पे भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है E G F, ठीक है। E G F 1 2 3 4 D J A, यहां पे भी G F यहां पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि J A D 1 2 3 4 E G F होता। अब H और C के बीच में 2 लोग, अगर मैं H और C यहां पे लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन F आया टॉप पे, केस कट गया। फिर यहां पे H और C काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बंदे, जे ਆਪਾਂ H और C किते ਇੱਥੇ अरेंज करिए, बंदे तो नो डाउट 10 होंगे कि बाकी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है D दे नीचे जी। H आप ऊपर बना लेने हैं 2 H एंड C, हाँ जी H दे नीचे J, ठीक है जी। ਇੱਥੇ की दिक्कत आ रही है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, जे ਆਪਾਂ H और C किते भी बनाइए, है ना, की दिक्कत आ रही है D दे नीचे G होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਚ G ऊपर है, गलत।
ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ H ਜਾਂ C ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। F ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਲਾਸਟ ਚ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ H ਔਰ C ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। F ਲਾਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ H ਔਰ C ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵੈਸੇ ਵੀ D ਦੇ ਉੱਪਰ G ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਚਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ? H ਤੇ C, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਗੈਪ HC, ठीक है। फिर की आया AJD FGE, आए ऊपर ते B नीचे। इस तरीके नाल पॉसिबिलिटी बना के मैं इस क्वेश्चन नू अटेम्प्ट किया। ते हुण जो इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन है वो तुसी अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है जी। इसी तरीके नाल अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर बारी आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है होता है, तो इस बार फिर से आपका मॉक टेस्ट हुआ है जिसमें कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए क्लास तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? विच अमंग The following is not a peripheral hardware device in a computer system। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है not a peripheral device hardware। पेरिफेरल का मतलब अपने आप में क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग अपने आप में होता है इनपुट आउटपुट। पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो अब आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कीबोर्ड जो है इनपुट देने के लिए काम यूज में लाया जाता है। ऑप्टिकल ड्राइवर, ठीक है, जिसे आप CD DVD भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटर आपके पास आउटपुट देने के लिए लाया जाता है। पर HDD ये तो इंटरनल पार्ट होता है ना, हार्ड डिस्क, तो इस वजह से ये जो है वो आपके पास एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज यूज्ड एज अ वाटर मार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, इमेज, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो जो वाटर मार्क होता है वो क्या होता है? जैसे हमारी बुक जो आप लोग देखते हैं उसके पीछे क्या है? ज्ञानम लिखा हुआ होता है बैक साइड में, अंदर पेज के ऊपर भी ज्ञानम लिखा हुआ होता है, उसे क्या बोला जाता है? वाटर मार्क यहाँ पे बोला जाता है। तो वो कैसा लगाया जा सकता है? टेक्स्ट भी लगाया जा सकता है, इमेज भी लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ ए एंड बी, वो दोनों ही लगाया जा सकता है, वो दोनों ही लगाया जा सकता है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी टाइप की है आपके पास। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास .wab फाइल्स या .mid मिडी फाइल्स, वेव फाइल या फिर गिफ, GIF जो होता है वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, JPG ये भी नहीं होगा और GIF ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर जो है बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है, क्योंकि JIF, JPG ये भी फाइल नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 1907 to 2003। अब यहाँ पे अब आपको बताना है कि एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 में से 2003 के बीच में जो आपके पास इसकी एक्सटेंशन थी वो क्या थी? डॉट, आपके पास DOT, डॉट, डोक, डोम या फिर टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा? डोक, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, क्योंकि MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक फाइल बोला जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल बोला जाता है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। सबसे पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कहां पे इंस्टॉल हुआ था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ए ऑप्शन ही इसका आंसर यहां पे बन जाएगा। तो आप लोग यहां पे आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर फॉर मल्टीमीडिया क्रिएशन। मल्टीमीडिया में सबसे पावरफुल या सबसे इंपैक्टफुल चीज कौन सी है? पीसी, मिन कंप्यूटर, मिन को के लिखा हुआ इस वजह से गलत है, मेन फ्रेम तो पीछे बैकवर्ड के लिए होता है, वैन तो आपके पास नेटवर्किंग में यूज होता है, तो वो आंसर क्या बनेगा? पीसी, जिसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी। साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो माइक हमें चाहिए, तो वही यहाँ पे स्पीकर तो आउटपुट देते हैं, टॉकर नहीं है, माउस इनपुट देने के लिए, आंसर इज माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ अ सीडी इज। अप्रोक्सीमेटली कितने साल तक होता है? 1 साल, 2 साल, ये 4 साल, ये 5 साल? तो अप्रोक्सीमेटली 5 साल तक होता है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये 5 साल तक यहाँ पे होता है। तो लाइफ स्पैन जो है किसी भी सीडी का कितने साल तक होता है? अप्रोक्सीमेट 5 साल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द डैश सेटिंग आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड, डिफॉल्ट, सीपीयू, पेरिफेरल या फिर यूजर फ्रेंडली। तो डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड में आती है, बाकी कोई भी नहीं आता है, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द 2 पार्ट ऑफ द ईमेल। तो ईमेल के 2 पार्ट कौन से हैं? यूजर नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस तो कभी नहीं होता है। लीगल नेम भी नहीं होता है। यूजर नेम एंड डोमेन नेम, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बनेगा। आंसर क्या बनेगा? यूजर नेम और आपके पास डोमेन नेम, जिस डोमेन पे आप लोग काम कर रहे हैं, यूजर नेम जो आपने अपना सेट किया था। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें आपको क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो मॉक टेस्ट में क्वांट का सेक्शन था उसका हम डिटेल सोल्यूशन यहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहे हैं? दिस ईयर द सम ऑफ एज ऑफ सुरेश फैमिली मेंबर्स इज 78। करंटली देयर आर 4 मेंबर्स, नेमली सुरेश, उसकी फैमिली में 4 लोग हैं, सुरेश, रीटा, दीपा एंड तरुण। सुरेश इज 4 years older than Rita. Deepa is 2 years older than Tarun. सुरेश इज 7 times as old as तरुण। तो ये एक रिलेशन कुछ ठीक मिला। अगर तरुण x है तो उसके कंपैरिजन में जो सुरेश होगा वो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और सुरेश रीटा से 4 साल बड़ा है, तो रीटा की क्या हो जाएगी? x -4 हो जाएगी, 7x -4। और दीपा 2 साल बड़ी है तरुण से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका x + 2 हो जाएगा। कितना? x + 2। और इन सब को ऐड करोगे तो ये सब किसके इक्वल है? 78 के इक्वल है। उन सब का सम क्या था? आपका 78 था। सबका सम क्या आ रहा था? 78 आ रहा था। अब देखो यहां से अगर ऐड करते हैं तो 7 + 7 14 + 2x 16x किसके इक्वल हो जाएगा? 78 -2 + 2, तो उधर जाकर +2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/16 5। तो उसने पूछा था दीपा की एज 5 + 2 7। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ 7200 अमाउंट्स टू 10,368 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम, देन 7200 अमाउंट्स टू इन हाफ ऑफ द टाइम, के आधे टाइम में कितना पैसा होगा? तो एक बार के लिए तो ये देखो सिंपल सा, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट करके देखूं, ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करके देखूं, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करो, पहले 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद ये कितना बनेगा? 23, तो 2 पे डिवाइड होगा, और फिर आपका ये 9 पे डिवाइड होगा, और फिर 6 के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका दोबारा देखो, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ये अभी भी डिवाइड हो रहा है आपका। किससे डिवाइड हो रहा है? एक तो मुझे 4 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद 4 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, और आपका ये 3 से भी डिवाइड, मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसको पूरा 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा, पहले किस पे? 7 पे डिवाइड होगा, 12 × 7 कितना होता है? 84, और फिर 5 पे डिवाइड होगा, और ये 108 पे डिवाइड होगा।
और उसके बाद ये फाइनली रेशो आ गया 25:36। तो मतलब ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर। अब देखो अगर टाइम यहाँ पे स्क्वायर आया है तो मतलब टाइम क्या रहा होगा, 2 ईयर रहा होगा। तो इनिशियल रेशो क्या था, 5:6। इनिशियल रेशो क्या था, 5:6। और यहाँ 5 की वैल्यू क्या है, 7200 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, पहले इसको 1 पे डिवाइड करेगा, देखो 1 पे डिवाइड करेगा, कितना बचेगा 22, फिर 4 पे डिवाइड करेगा, फिर 4 पे। तो 6 × 1440 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 × 4 कैरी 2 8 और 8640, उल्टा लिख दिया 8640। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं शिखा स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ऑफ 50,000 इन 1999। In 2000 she invested an additional amount of 20,000 and Raju joined him with an amount of 70,000. In 2001 Shika invested another additional amount of 20,000 and Jolie joined them with an amount of 70,000. What will be the Raju share in the profit of this earned at the end of 3 years from the starting of the business? कि 1999 में बिजनेस स्टार्ट हुआ। देखो पहले तो एक बार शिखा का ही अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। शिखा ने 50,000 रुपए लगाए, ठीक है। सबसे पहले उसका ये पैसा कितने टाइम के लिए लगा, 12 मंथ्स के लिए लगा, ठीक है। या इसको ईयर में ही रख लेते हैं, 12 में करने, क्योंकि ईयर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये पैसा लगा उसका 1 साल के लिए, ठीक है। अगले साल उसने इसमें 20,000 और ऐड कर दिए, तो मतलब उसका पैसा क्या हो गया, अब ये जो पैसा था ये अगले साल कितना हो गया, 70,000 हो गया। अब जो 70,000 है ये भी कितने साल के लिए लगा, 1 साल के लिए। और उसके बाद उसने दोबारा से फिर 20,000 इन्वेस्ट किए और अब उसका पैसा कितना हो गया, 90,000, और ये भी कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। टोटल 3 साल तक उसका पैसा चला, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करें तो ये कितना बनेगा, देखो 7 + 5 12, 12 + 9 21, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि शिखा ने जो टोटल पैसा लगाया था वो ये अमाउंट था। शिखा ने जो टोटल पैसा लगाया था वो ये अमाउंट था, ठीक है। उसके बाद राजू ने उसको ज्वाइन किया था और राजू ने ज्वाइन किया था विद एन अमाउंट ऑफ 70,000। और राजू ने एक बार पैसा लगाया, दोबारा कोई पैसा नहीं लगाया। और राजू ने ज्वाइन कब किया था, इसने 2000 में ज्वाइन किया था, तो मतलब 2 साल के लिए। तो राजू का अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं तो राजू का अमाउंट ये बन जाएगा हमारा 1,40,000, ठीक है। और जोली ने तो 1 साल के लिए ही लगाया था। देखो अगर मैं अब शिखा, राजू और जोली, ठीक है, शिखा, राजू और जोली, इन सब के अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 14, और ये कितना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रेशो ये आ रहा है आपका 3, 2 और 1 रेशो में आ रहा है। किस रेशो में आ रहा है, 3, 2 और 1 के रेशो में आ रहा है। 3, 2, 5 + 1 6, इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो तो ये 5 और पीछे 40। और उसने पूछा था हमसे राजू का प्रॉफिट जो कि 2 यूनिट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। उसने क्या बोला है, ए शॉपकीपर हैज ए स्टॉक ऑफ राइस 20%, राइस 20% ऑफ द राइस इज स्पॉइल्ड, then shopkeeper sell remaining rice at 110% of the cost price and use 200 gram less weight in 1 kg, find the overall price profit, ठीक है। देखो उसको यहां से अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझें तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसने यहां से प्रॉफिट नजर आ रहा है कि 10% का प्रॉफिट लिया, ठीक है। अगर टोटल वेट का जितना भी उसके पास वेट था 20% उसका क्या हो गया, खराब हो गया। और उसने देखो 200 ग्राम मतलब 20% ही वेट क्या किया, कम कर दिया, जितना खराब हुआ था उसने वो वेट कम कर दिया, ठीक है। और टोटल के ऊपर प्रॉफिट कितने का लिया, 10% का। तो ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। यहां से अगर देखो इसको डिवाइड करोगे 3 पे डिवाइड करेगा। अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो ये आपका 3:1 आता है। कितना आता है, 3:1 आता है। एंड
10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, और यहां से बी और सी का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो वो 2:1 आता है। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 6, 2 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। किस रेशियो में आ जाएगा, 6, 2 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सी की इनकम 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो उसने पूछा टोटल इनकम 6 + 2 + 1 कितना हो गया हमारा 9, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18000 हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ मोन फैमिली हैविंग 5 members वो 17 years, के 3 साल पहले 5 लोगों का जो एवरेज था वो 75 था, तो सम कितना होगा, 85 होगा। तो सम कितना होगा, 85 होगा। और ये कब था, 3 साल पहले। तो इन 3 साल में हर पर्सन की एज कितनी बड़ी होगी, 5 साल से बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 15 और ऐड कर दूं, 5 × 3 15 के हिसाब से। तो आज के दिन उन 5 लोगों का सम कितना है, 100 है। आज के दिन सम कितना है, 100 है। मोहन बिकम्स फादर बट द एवरेज ऑफ द फैमिली स्टिल सेम, मतलब 6 लोगों में भी एवरेज उसने 17 ही बोला, तो 17 × 6 कितना होता है, 102। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 years, और यही उसके बच्चे की, ये उसके बेटे की एज थी। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 km/h if it returns to the same distance at 80 km/h then average speed during the whole journey। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला यूज क्या करते हैं हम, 2xy डिवाइड बाय x + y। एवरेज स्पीड के लिए जहां डिस्टेंस सेम है आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हो। तो 2 × 100 × 80 डिवाइड बाय 180 x + y। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, तो 800/9 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 800/9 तो 88.99 समथिंग लगभग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, टी वर्थ ₹126 पर kg and 135 rupees per kg mixed with the third varieties in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 153 rupees, then the price of the third quantity। देखो पहले वाले का अगर 1 kg लिया तो कितना होगा प्राइस, 125। सेकंड वाले का 135, थर्ड वाले का प्राइस हम मान लेते हैं कि x होगा, तो कितना हो जाएगा 2x। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 153, और टोटल क्वांटिटी क्या बनी आपकी, 4 यूनिट बनी। तो टोटल 4 × 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 × 3 12 कैरी 1। वैसे देखो अगर इसको 150 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 600, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 612 माइनस 5 + 6 11 कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 2 261। 261 तो पूरा पूरा तो ये आएगा नहीं 1, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 11 - 6 5, 6 - 5 3 2, तो 350 यानी कि 175.5। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चन है वैसे तो। ए बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स टू 2 rupees कॉइन्स। ठीक है, 1 रुपए और 2 रुपए के जो कॉइन्स का रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। वो क्या है, 5:7 है। एंड द रेशियो ऑफ 2 rupees कॉइन टू 5 rupees, और उसके बाद 2 rupees और 5 rupees के जो कॉइन्स का रेशियो है वो 7:6 है। तो मतलब अगर इनका कंबाइंड रेशियो की बात करें तो 5 7 और 6 बनेगा। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द 5 rupees coins if the total value of 1 rupees coins in 15 rupees is 15 rupees। के टोटल वैल्यू क्या है, 15 rupees है। ठीक है, तो मतलब 5 किसके इक्वल है, 3 के। 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। तो 6 × 3 मतलब यहाँ 5 rupees के कितने कॉइन्स है, 18 कॉइन्स है। और उसने तो वैल्यू की बात की है, तो 18 × 5 90 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा,
ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी 90 आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइप के टॉपिक से है हमारा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 60 एंड 75 मिनट। ए उसको 60 मिनट में करता है और बी उसको 75 मिनट में फिल करता है। देयर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन देन द टैंक फिल इन 50 मिनट्स। अगर अब जो फिल करने वाले हैं और जो एम्प्टी करने वाले हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ से अगर 60, 75 और 50 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा एलसीएम आपका 300। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4 और ये एफिशिएंसी 6। देखो जो फिल करने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी 9 है और जब तीनों काम करते हैं एफिशिएंसी 6 है, तो मतलब सी की एफिशिएंसी क्या थी? 3। और 300 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो वो कितने टाइम में कर देगा? 100 मिनट में उसको अकेला करेगा तो खाली कर देगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? एन अलॉय कंटेन्स जिंक, कॉपर एंड टीन इन द रेशियो जिंक, कॉपर और टीन। ये किस रेशियो में है? ये 2, 3 और 1 के रेशियो में है। ये किस रेशियो में है? ये आपका 2:3:1 है। एंड अनदर कंटेन्स कॉपर, टीन एंड लीड। कॉपर, टीन एंड लीड ये किस रेशियो में है? 5:4:3। इफ इक्वल वेट, अब मतलब दोनों का वेट इक्वल है तो सबसे पहले तो इस चीज को अपने को सेम करना पड़ेगा। 3 + 2 5 + 1 ये कितना बना आपका? 6 बना और ये कितना बना? 12। अगर ये 12 है तो इसको भी 12 कर लो, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, 6 और 2। ठीक है, टुगेदर फॉर मेथड लेड का वेट पूछा है तो वो कितना है? 3 और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 + 12 24। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 1/8। 1/8 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोनों की क्वांटिटीज को इक्वल किया और जो क्वांटिटी उसने पूछी है टोटल में से उसका फ्रैक्शन निकाल दिया हमने। इसमें क्या कह रहा है? ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर पेएबल हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या है? हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर इज 56। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर इज 56, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16% है। ये लाइन थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है। ठीक है, दसम तो प्रिंसिपल बताना है। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? 16% ही होगा। बट जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 8% 2 ईयर के लिए अगर मैं कहूं तो 16.64% लगेगा। तो जो ये 56 है ये आपका 60.64 की वैल्यू है, तो इंटू 100 क्योंकि इसका पॉइंट रिमूव करके मैंने इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अगर अब हम सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 इसको 7 पे डिवाइड करेगा और इसको 8 पे। ठीक है, उसके बाद 8 इसको 125 और फिर 0 लग जाएगा, 12 7 84। तो 8750 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मल्टीप्लाई के बिना भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आंसर होने वाला है। A fire 5 shots to B, ठीक है, to B 3, but A kills only once in 3 shot while B kills 2 in 1 shot. When B missed 27 times, A has killed. तो A ने कितने किल किए हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन इसमें आपके अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पहले भी मॉक टेस्ट में देखे होंगे जो लीप वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके रेशियो के टॉपिक में है। ठीक है, रेशियो के टॉपिक में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कुछ। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो अगर ये 5 शॉट करता है तो ये 3 करता है। ठीक है, तो ए के शॉट्स की अगर हम बात करें तो टोटल के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं कि ये 5/8 है और बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 3/8 है। ठीक है, इसके साथ एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं और वो वेरिएबल हम क्या रख लेते हैं? एक्स रख लेते हैं। वो वेरिएबल हम क्या रखते हैं? एक्स रख लेते हैं।
ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद उसने जो बी ए की बात की है, क्या ए क्या कह रहा है, ए किल्स ओनली वंस इन 3 शॉट, कि जो ए है वो 3 शॉट में सिर्फ एक को मारता है, मतलब उसकी जो किलिंग की है वो 1/3 है। किलिंग कितना है उसका, 1/3, और 1/3 भी किसका होगा, उसका जो 1/3 है वो किसका कैलकुलेट होगा, आपका 5/8 का कैलकुलेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 5/24x बनेगा, ठीक है, 5/24x बनेगा, ठीक है। और अब बी ने कितना किया, 2 शॉट, 1 इन 2 मतलब हाफ, ठीक है, और हाफ है तो उसका यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, मिसिंग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसने लास्ट में मिस का ही दिया है। अगर इसका मिसिंग कैलकुलेट करते हैं तो ये 3/8 के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो 1/2 इंटू 3/8x, ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/16x, और ये किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है, क्योंकि उसने मिस 27 किए थे। 3 से डिवाइड करेंगे 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 मतलब 144, 16 इंटू 9 मतलब 144। अब यहां से डिवाइड करें तो a का आंसर क्या आ जाएगा, 30, क्योंकि x की वैल्यू वहां पुट करो तो उसको 6 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 6 इंटू 5 आंसर क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये सबको। द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज आर इन द रेशो 3:2, के बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो आपका क्या है, 3:2 है। If 20% of boys and 25% girls are adult, the percentage of students who are not adult, अगर मैं इसको 30 और इसको 20 कर दूं, अगर 20% बॉयज एडल्ट हैं तो मतलब 80% ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं हैं, तो 80% का मतलब है 24, और 75% का मतलब है 15, तो टोटल 39 को 50 पे कैलकुलेट करो तो ऑप्शन सी 78% ऐसे हैं जो आपके एडल्ट नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वेराइटीज ऑफ सुगर इज सोल्ड फॉर 3.20 रुपीज पर केजी एट ए लॉस ऑफ 20%। देखो 3 रुपए 20 पैसे में सेल किया गया और उसको 20% लॉस हुआ, तो मतलब ये 80% की वैल्यू है। तो मैं इसका अगर सीपी कैलकुलेट करूं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 4 होगा। आप इसको 80 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब दूसरे का अगर मैं सीपी कैलकुलेट करूं, वो कह रहा है कि 6 रुपए में सेल किया गया और 20% प्रॉफिट, मतलब 5 को 6 में सेल किया गया, तो इसका सीपी क्या था, 9, तो 5, तो टोटल सीपी मेरे पास क्या है, 9 है। टोटल सीपी मेरे पास क्या है, 9 है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, if equal quantities of these two are mixed together and mixture is sold for 5.40 rupees, 5.40 रुपीज, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और ये हो जाएगा 8, 10.80, मतलब उसने 10 रुपए 80 पैसे में उसको सेल किया है। तो यहां से प्रॉफिट की बात करें तो 1.80 का प्रॉफिट हुआ 2 के ऊपर इंटू 100, तो साफ साफ नजर आ रहा है मेरे भाई कितना प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, we are up to the mock section of English. Let us try. पहला क्वेश्चन है, आपको fill in the blank करने हैं according to the appropriate word. Choose the correct alternative out of the 4 alternatives. Each school has its own set of rules. All good pupils should follow them. Positive response, इनको join करते हैं हम and से। तो दोनों की जो ज्वाइनिंग आ जाएगी वो किससे आ जाएगी, एंड से, राइट। फॉलोड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। अब देखो बहुत सारा काम आ गया था, तो आई हैड टू कैच अप विद अ लॉट ऑफ वर्क। सो कैच अप विद अ लॉट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ गया था। फॉलोड बाय द पॉइंट, बेस्ट एक्सप्रेस क्या करता है, आपको बताना है synonyms of these words, right? dubious का मतलब होता है डाउटफुल, कि अभी मुझे डाउट लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सही है कि नहीं। जब आपको लगे कि आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट अ सर्टेन फैक्ट, तो वहां क्या यूज करेंगे आप, dubious। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, यू हैव टू चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग, एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है नॉलेज प्रदान करना, मतलब उस चीज को क्लियरली आगे लेके रखना,
उसका ऑपोजिट हो जाएगा बेफॉग, विच मीन्स कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट? somebody is getting confused, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और वी कैन से कि जब आप किसी को कंफ्यूज कर देते हैं, आई एम बेफॉगिंग यू, धुंधला धुंधला, फॉगी फॉगी इज कॉल्ड बेफॉग। फॉलोड बाय आपको बताना है इन वर्ड्स के लिए क्या यूज कर सकते हो। बेसिकली इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट? severely abusive writing in journal। अगर आप एब्यूजिव राइटिंग की बात करते हैं, जहां पर आप गालियां लिख रहे हैं या किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं विद बैड रिमार्क्स, उस चीज को बोला जाता है स्करियलियस, राइट? नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, जैसे लॉ की है, हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। या तो आप गॉड को बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर किसी लॉ जैसी पावर को जो आपको हेल्प कर सके, जैसे किंग हो गया, लॉ हो गया। उस टर्म को क्या बोला जाता है? इन्वोकिंग। इन्वोकिंग से बनता है नाउन इन्वोकेशन। लाइक आई वॉज इन्वोकिंग गॉड, मतलब मैं याद कर रहा था। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज इन बोल्ड। टोकन स्ट्राइक, टोकन इज लाइक ट्रेलर की तरह होता है ना, टोकन मनी दिया है मैंने, है ना? सो उसका मतलब होता है कि आप एक वार्निंग के तौर पे ट्रेलर दिखा रहे हैं कि भाई ट्रेलर है, अगर हमारी बातें नहीं मानी तो स्ट्राइक अच्छे वाली होगी। नेक्स्ट फिर से बाय ओपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ हिम। कहता उसके प्रपोजल को अपोज किया। अब देखो अपोज नेगेटिव है कि पॉजिटिव वर्ड है? सर अपोज तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो कहता है कि भाई वो थोड़ी दुविधा में पड़ गया, गॉट इनटू ट्रबल। अब आप कहते हैं कि एनॉयड क्यों नहीं आएगा? भाई जिसने मना किया वो क्यों एनॉय होगा? प्रेफर्ड स्पेलिंग फॉर ईच ऑफ दिस कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। नेसेसरी SARI, टेम्परेरी PORARY, टेम्परेरी, आइटिनरी एंड सैंगुनरी। अच्छा सैंगुनरी की बात करेंगे, हैज टू बी अ, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, आंसर इज C। फॉलोड बाय व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी पड़ेगी, राइट? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो आपको पता ही है, वहां पे एरर है बिकॉज इट शुड बी OH, है ना? और नेक्स्ट इज अपॉलॉजी, अगेन वहां पर एरर है, यू नो दिस। अपॉलॉजी की स्पेलिंग क्या होते हैं? अपॉलोजाइज करना। जो करेक्ट आंसर है, क्रिमिनोलॉजी की स्पेलिंग भी गलत है, द करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर इज कॉल्ड बैचलरेट, ये तो आपको पता ही है। फॉलोड बाय डू यू थिंक ही डैश व्हाट आई सेड। व्हाट आई सेड है, सेड इज इन द पास्ट फॉर्म, तो ये भी पास्ट फॉर्म में रहेगा, अंडरस्टूड, आंसर इज B बॉय। फॉलोड बाय सिनोनिम बताना है, सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं ना, इस बात का बहुत सिग्निफिकेंस है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं और हम ये चीज देख रहे हैं कि मॉक्स को कैसे करना है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, हम ये कह सकते हैं, राइट? फॉलोड बाय व्हाट वी हैव इज मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। आर स्कूल हैड वन द मैच इफ वी हैव नहीं आता इफ के साथ डायरेक्ट। वुड हैव वन द मैच इफ ही वुड, नहीं, फिर से वुड। अ स्कूल वुड हैव वन द मैच इफ ही हैड, ये बिल्कुल सही है, हैड और वुड हैव नहीं, तो आंसर इज C। वो पढ़ा ना आपने, इफ के साथ हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट? और वुड हैव से हम जीत जाते। तो कहता हमारा स्कूल मैच जीत गया होता अगर हमने कंसंट्रेट किया होता। फॉलोड बाय रीअरेंज द पार्ट्स PQRS टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। पीपल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। गाइज इसको देखकर ही पता लग जाएगा आपको, बिकॉज आपने इंटरलिंक चेन बनानी होती है, ठीक है? अभी पीपल देखते हैं, पीपल के साथ वेंट चलेगा, ठीक है? देखो क्यों आ सकता है, लेकिन अब एट इज डिस्पेंसरी के बाद ऑफ ऑल प्रोफेशंस नहीं आएगा। मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, प्रोफेशंस के मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या होता है? पीपल का प्रोफेशन होता है, तो पीपल के बाद आर, ये लगाइए, आर से स्टार्ट होता है, 2 आर के बाद पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम, इट शुड बी Q। एट इज डिस्पेंसरी, कहां गए? जगह, किस चीज के लिए गए? मेडिसिन ट्रीटमेंट, RQPS, देयर वी गो with the option number C। Followed by it is done। I hope you enjoyed this, आपको समझ आया है। Take care, enjoy, bye bye।